Good morning class. How are you? I hope all of you are doing well. कल से हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया है, दैट इज कैटेगरिकल सिलोजिज्म. और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप सब फर्स्ट वीडियो से ही ध्यान से इस चैप्टर को सुने, क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, ओके और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से फाइनल एग्जाम में आते हैं. ओके इस चैप्टर में फैलेसीज भी है, ओके फैलेसीज भी है. सो आप लोग प्लीज फ्रॉम द बिगिनिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. ओके सो बिफोर स्टार्टिंग विथ टुडेज क्लास मैं एक क्विक रिविजन दे देती हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. द चैप्टर नेम इज कैटेगरिकल सिलोजिज्म. ये चैप्टर यूनिट 3 का, दैट इज लॉजिक पोर्शन का यूनिट 3 का सेकेंड चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर था इन्फरेंस, ओके ये सेकेंड चैप्टर है. ओके सो व्हाट इज अ सिलोजिज्म? सबसे पहले a syllogism is a form of mediate deductive inference. Okay, deductive inference is divided into two kinds, right? Immediate inference and mediate inference. Immediate inference again is divided into obversion conversion, जिसका definition and rules and application to AEIO मैंने आप लोगों को समझाया है. Mediate inference है ये सिलोजिज्म. सो सिलोजिज्म इज नॉट इमीडिएट डिडक्टिव इन्फरेंस, बट इट इज अ मीडिएट डिडक्टिव इन्फरेंस in which the conclusion is taken from two premises taken jointly. Okay, so once again, what is a syllogism? A syllogism is a form of mediate deductive inference in which the conclusion is derived from two premises taken jointly. That means a syllogism is composed of 3 propositions. Out of 3 propositions, 2 are given proposition which are known as the premises, and 1 proposition we infer from the given proposition, and that is known as conclusion. So ये जो syllogism है ये argument के जैसा है, प्रेमिसेस कंक्लूजन टाइप. ओके जिसमें 2 प्रेमिसेस हम लोगों को दिया जाता है, 2 प्रपोजिशन हम लोगों को दिया जाता है जिसको बोलते हैं प्रेमिसेस, और एक हम लोग उन 2 प्रेमिसेस को ज्वाइन करके एक नया प्रपोजिशन इन्फर करते हैं जिसको बोलते हैं कंक्लूजन. ठीक है. देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलोजिज्म. फर्स्ट वन, in a syllogism we cannot derive the conclusion from any one premises, but the conclusion should be derived from 2 premises taken jointly. दूसरा characteristics, in a syllogism the conclusion should be less general than the premises. और तीसरा, in a syllogism the conclusion is true provided the given proposition or the given premises are true. Clear? So now in today's class I'll explain you the subdivision of a syllogism or the kinds of a syllogism. So let us start. Classification of syllogism. ठीक है. Syllogism is broadly classified into pure syllogism and mixed syllogism. Syllogism जो है उसको broadly classify किया गया है into pure syllogism and mixed syllogism. This pure syllogism again is subdivided into categorical hypothetical syllogism,
hypothetical syllogism, disjunctive syllogism. So ये जो प्योर सिलोसिज्म है इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया है इनटू 3 टाइप्स, दैट इज कैटेगरिकल सिलोसिज्म, हाइपोथेटिकल सिलोसिज्म, डिसजंक्टिव सिलोसिज्म. ठीक है. नाउ कम टू द मिक्स सिलोसिज्म. मिक्स सिलोसिज्म को भी सब डिवाइड किया गया है इनटू 3 टाइप्स, दैट इज hypothetical categorical syllogism, disjunctive categorical syllogism and dilemma. ठीक है, and dilemma. So this is the classification of a syllogism. A syllogism has been broadly classified into 2 types, that is pure syllogism एंड मिक्स्ड सिलोसिज्म. जो प्योर सिलोसिज्म है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू 3 टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स, दैट इज कैटेगरिकल सिलोसिज्म, हाइपोथेटिकल सिलोसिज्म, डिसजंक्टिव सिलोसिज्म. और जो मिक्स्ड सिलोसिज्म है उसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू 3 काइंड्स. व्हाट आर दे? Hypothetical categorical syllogism, disjunctive categorical syllogism and dilemma. ठीक है. So these are the subdivision of a syllogism. ये syllogism का subdivision है. Okay. So आप ये चार्ट ध्यान से देखें और याद कर ले, बिकॉज बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इस क्लासिफिकेशन ऑफ सिलोसिज्म से आ सकते हैं. ठीक है, क्लियर? सो हम लोगों ने अब तक सिलोसिज्म चैप्टर में क्या क्या देखा. व्हाट इज अ सिलोसिज्म? सिलोसिज्म इज अ फॉर्म ऑफ मीडिएट डिडक्टिव इन्फरेंस इन विच द कंक्लूजन इज ड्रोन फ्रॉम 2 प्रेमिसेस टेकन जॉइंटली. ओके. फिर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलोसिज्म देखा. देयर आर हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलोसिज्म? देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलोसिज्म. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इन अ सिलोसिज्म द कंक्लूजन इज ड्रोन फ्रॉम 2 प्रेमिसेस टेकन जॉइंटली एंड नॉट फ्रॉम एनी 1 प्रेमिस. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, इन अ सिलोसिज्म द कंक्लूजन मस्ट बी लेस जनरल देन द प्रेमिस. और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, इन अ सिलोसिज्म द कंक्लूजन इज ट्रू प्रोवाइडेड द प्रेमिसेस आर ट्रू. ठीक है, these are the characteristics of syllogism. Now the classification of syllogism. The syllogism has been classified into 2 broad classes, that is pure syllogism and mixed syllogism. Pure syllogism is further classified into 3 types, that is categorical syllogism, hypothetical syllogism, disjunctive syllogism. And mixed syllogism is also classified into 3 types, that is hypothetical categorical syllogism, disjunctive categorical syllogism and dilemma. ठीक है, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही. मैं बार बार इस चैप्टर को रिवाइज करा रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो वीडियोस ध्यान से देखें और जहाँ तक मैंने कंप्लीट किया है आप लोग प्लीज़ या वहाँ तक अच्छी तरह से सुने. कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपका क्वेश्चन आप ड्रॉप कर सकते हैं. ओके. और अब तक का जो व्हाट इज सिलोसिज्म, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलोसिज्म एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सिलोसिज्म, ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ लें. ठीक है. ओके. हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू.